Hello, hello. This is the My Artifact episode number 2884. Today's date is 3rd of October 2023. It's almost like a night at 10 p.m. Alright, so what exactly happened? Nothing really. Today I should supposed to upload my video and it will be done by end of the day. Almost everything is done. Audio is almost done. Yeah, almost. Okay. The intro sequence is done. Then I just have to add the patches, but still little bit understanding that where should I use dips and ups. What is the dips and ups? Like in the song there are dips, means like that ki sound goes down, and ups means sound goes up. What do you mean by that? It means like that na ki tiding tiding ting tin tin tiding tiding tin 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 tiding tiding tin 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 tiding tiding tin 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 tin. So this is the sound goes up, यानी यहाँ पे बीट्स बढ़ते हैं और इंटेंसिटी बढ़ती है. इंटेंसिटी बढ़ने के बाद अटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है. देन डिप्स यानी प्यू. डिप्स यानी क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह से बीट्स कम हो जाती है, एक तरह से इट फील लाइक कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ओके. सो वाइल मेकिंग दिस वीडियो एंड कंटेंट क्रिएशन यू हैव टू डिसाइड दैट कि कहाँ पे डिप्स लेना है, कहाँ पे अप्स लेना है. ओके. So I already did this thing, but still some of the things remaining. It will be done after this artifact episode. Yeah, after this artifact episode, it will be done, and during the night I will put this file for upload. Tomorrow I will publish that file. All right. Yeah, it's Akinator. Next project is GTA 5. Okay, the project is I have to kill 20 people without dead. Okay, so this is the challenge. So I will take this challenge tomorrow. All right. All right. So from couple of days, I was actually asking question to myself related about the romantic questions, and usually instead of telling about my opinion, I was I was talking about what should you have to do, what should other has to do. Okay, I just have to over explain things, and because of that my mind get little bit of spoiled, because yesterday while I was uh, uh, trying to telling, like, basically what I'm trying to tell you now कि like somehow I just feel like that कि in other end might be this artifact episode will listen by someone. Okay. And I'm actually telling that person कि what exactly you should have to do, you should have to do वगैरह वगैरह. Okay, but instead of that, the in other end there is no one is actually listening. I don't know who will listen this artifact episode or not, but it's just like that na ki I am like I'm just trying to telling that ki in other end someone is there and I'm explaining this thing to them. But that is not na. You have to explain yourself. Okay, you have to tell your opinion. You have to be honest about yourself. Okay, try not to judge the thing, try not to judge about the surrounding situation. But dude, yeah, some of the questions are related with that. Okay, like basically let me tell you one thing. The question that I'm asking myself is that the romantic question. Okay, romantic question, the question should supposed to ask your girlfriend or boyfriend. Okay, so right now at this moment I never really had any kind of like a something really relation with any other person. I never really been in relationship. I never really had any girlfriend at all. So I didn't really experience anything. So basically the answer that I'm giving is kind of like a something really hypothetical. But it's not hypothetical, it's kind of like a something really related with that. Like I didn't really experience this thing, but I seen people around me, I seen closely enough. Okay, what is actually happened वगैरह वगैरह. So yeah, and I can little bit understand too. Okay, since I'm not get that much experience, but still like I got little bit of information. I think that might be happen exactly like this, or kind of like a close to like this. So yeah. Okay, so I am giving my opinion. It should not supposed to be kind of like a यही होता है वगैरह वगैरह. No, it's not. Okay, but yesterday while I was recording artifact episode, I was became kind of like a something really mono thought. Mono thought means like that कि something really in very
bad way that I'm telling about the opinion, which is really not so good. Okay, like yesterday, the question was that the question was that ki, how do you think we should be keep this spark alive and everything. I was over explaining things. Okay, ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह. It's not. Alright. So now we are actually asking this question. I'm gonna asking this question to myself, and these questions are a bit really serious regarding the relationship and regarding the love and वगैरह वगैरह. But since I didn't really have anything about that, so I'm just kind of like assuming things and try to understanding that key what is exactly the possible answer should I give. Okay. So question is, why did you why did your last relationship end? I already explained yesterday. Yesterday I explained that ki, like basically telling about the past relationship is really essential to understand what is actually wrong happened and what is actually mistake happened, and that mistake shouldn't happen in the future. So yeah, whatever, I already explained this thing, so I will not continue with this question again. Okay. Next question, do you see yourself getting married? Yeah, I can see that ki I will getting married. Okay. With who and with who? Like I don't know yet. Okay, but I will definitely getting married. All right. Yeah. Basically, the gravity of this question is actually very much serious, and this question is belongs for the girlfriend and boyfriend. Like basically, is that na, ki if the girlfriend is actually asking this question to his boyfriend that ki, do you see that ki you will getting married or we will be getting married, then it's a kind of like a very serious question. Okay, like you just have to thought about a lot of things and everything. Okay, you have to put hopes and things like that. So yeah, it's a very heavy questions, but still I didn't really have anyone. Okay, and I know that I will getting married. So for my perspective, the question, the gravity of the question is really nothing. So it's literally simple. But if this question if the girlfriend asks this question to boyfriend, then the gravity of the question is too much. All right. Do you want kids? Somebody? Yeah, I want kid, two daughter. I love daughter. Yeah, I want daughter. Where do you ultimately want to live? Where do you ultimately want to live? Pune. Yeah, like I wanted to establish my company, and in establishing company, and I wanted to live in metro city, but I don't want to live in Bombay because Bombay is too much. Pune is had enough, as also is a IT hub, and I can get all my resources from the Pune. So yeah, I wanted to settle in Pune. So yeah, next question. Where would where you ever live in another country? Well, I didn't really thought about that. Yeah, for the work perspective, obviously you have to live in another country, but I didn't really I didn't really think that I have to live my entire life or some sort of period of longer period of time in another country. No, 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 it's not like basically is that na ki for the work perspective, yeah, I have to leave like a couple of weeks or something like that, but I will not leave more than a year. If the work is relate with that, yeah, but basically is that na in other country, no. But there is only one country, actually one city that I wanted to live is in New York. Okay, I just wanted to experience in New York and what is at least what is exactly is this thing. So yeah, but if I get chance to live in New York, I will live New York more than months or whatever whatever, but still not that much. Okay, I like my country, I like my city Pune. So yeah, next question. uh, how much personal space and time do you need for yourself? Well, I need my personal time, space, uh, but it's just like that na ki um
Like personal time, what is exactly personal time? Personal time means like that कि my thought process is something really different. Okay, let me tell you one thing कि usually the person who I will be with, okay, जो भी लड़की वो मेरे साथ में होगी, I wanted to tell everything regarding, not tell everything, but yeah, I wanted to tell everything regarding about the life, what I'm been through, वगैरह वगैरह. Okay, I just the person that I'm being with ना, I wanted to talk more than talk. Okay, usually क्या पे होता है वगैरह वगैरह. Okay, so because of that ना कि uh, that person should understand कि when it is required some sort of personal time or my space, then yeah, she will give that, because I will practically tell you all those information about where should I need वगैरह वगैरह. But let me tell you one thing ना कि कहाँ पे ज़रूरत होती है लाइक अकेलेपन की या पर्सनल स्पेस की. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाई डू यू नीड अ पर्सनल स्पेस. यूजुअली पर्सनल स्पेस का मीनिंग क्या होता है ना कि आपको आपकी खुद का टाइम और खुद की स्पेस चाहिए. ओके, या एवरीवन रिक्वायर्स दैट, आई एम कम्प्लीटली अग्री विद दिस थिंग. ओके, बट क्या होता है ना कि अगर आप जिस बंदी या बंदे के साथ हो, ओके, और आपके बीच में कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू डोंट रियली टॉक दैट मच, यू डोंट रियली डू दैट मच, तो आपके लिए वो इंसान काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली अ पर्सन हु इज़ लिविंग विथ यू. ओके, तो माइट बी लाइक अगर वो इंसान आपके साथ रहता है तो ऑब्वियसली यू आर शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, रूम, लिविंग रूम, बेड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होते हैं. तो वहाँ पे आप बॉदर करोगे क्योंकि लाइक आई नीड लिटिल बिट पर्सनल पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो यूजुअली ये पर्सनल पीरियड ऑफ टाइम या पर्सनल टाइम एंड स्पेस आपको जब चाहिए, लाइक व्हेन यू वांट दैट, कि जब आप लाइक आपका कनेक्शन आपके पार्टनर्स के साथ उतना अच्छा नहीं है. ओके, बट इफ़ यू हैव काइंड ऑफ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू एंड हर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको पर्सनल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती. ओके, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग ओन पर्सनल स्पेस. आई सीन दैम. ओके, क्योंकि अगर लाइक लेट मी टेल यू, आपने भी देखा होगा बट यू डोंट रियली नो इट. ओके, किसी भी पार्टी में दो लड़का लड़की बात करते, दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते, तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. उनको पता ही नहीं कि बाहर पार्टी में क्या हो रहा है, नथिंग रियली एट ऑल. पब्लिक में भी दिख जाते, कभी कभी ने क्या दो लोग ने क्या एक दूसरे से बात करते हुए रास्ते से चल रहे थे. ओके, लाइक बेसिकली उनको पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, दे आर एक्चुअली टॉकिंग टू ईच अदर. ओके, सो यूजुअली ये हब सर जगह सब जगह होता है. ओके, लाइक बेसिकली यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू ईट द चिकन पार्टी डिनर वगैरह, तो वहाँ पे राहुल एंड राहुल वाइफ इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू ईच अदर. हम सभी लोग वहीं पे थे, हम वहीं पे खाना खा रहे थे वगैरह वगैरह. दे आर टॉकिंग टू ईच अदर काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली पर्सनल एंड प्राइवेट. और वो इतने हल्के से बात कर रहे थे, but they didn't really know, they are actually constantly talking about whatever it is. I didn't really hear about that. बट जब भी आपने क्या आप उस पर्सन से बात करते हो, आप भूल जाते हो कि आसपास कोई है या नहीं है वगैरह वगैरह. ओके, सो यूजुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब भी आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा होता है ना, तो यू डोंट रियली नीड ए पर्सनल स्पेस. आप हर जगह कभी भी किसी भी वक्त आप पब्लिक में भी एक पर्सनल स्पेस क्रिएट कर देते हो. ओके, यू डोंट रियली नीड अ पर्सनल स्पेस, क्योंकि क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग ना, जहाँ पे प्यार है वहाँ पे अगर एक झोपड़ा भी हो ना तो वहाँ पे मन लगता है. बट अगर बड़े से महल में आप एक दूसरे से प्यार भी नहीं करोगे ना, तो एक बड़ा सा महल भी आपको कम लगने लगता है. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, पर्सनल स्पेस एक तरह से या जगह या प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कि पर्सनल स्पेस या पर्सनल टाइम एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है जो आपको मिलती नहीं, क्या आपके पास है नहीं वगैरह वगैरह. नो, इट्स नॉट. इट्स इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड योर थॉट प्रोसेस. आप जो सोचते हो, उस सोचने का नज़रिया अगर बदलो ना, तो आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है. ओके, सो या ऑब्वियसली पर्सनल स्पेस हाँ ज़रूरी हो जाता है. ओके, एट सम सर्टन पॉइंट
अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टॉपिक दैट you should don't be interfere in this thing. Okay, why? Because of that na ki if she interfere in this thing, it's not good, because it's kind of like something really career related or something, whatever it is, कि उससे उन दोनों का शायद, I don't know यार, it might get something really wrong. So you have to tell them कि this is the kind of like something really, you also tell them कि what is the consequences happen if this thing happen वगैरह वगैरह. क्योंकि हमें पर्सनल स्पेस तब चाहिए होती है जब हमारे पास ऐसी कोई चीज़ होती है जो हम सीक्रेट रखना चाहते हैं. ओके, वी जस्ट वांटेड टू कीप इट सीक्रेट वगैरह वगैरह. सो माइट बी ओके, बट डू यू रियली रिक्वायर्ड अ पर्सनल स्पेस एंड टाइम? No, I don't really require. Okay, yeah, the person who I'm being with you, being with that person, I will talk with that person and she's cool, I'm cool, that is okay. Okay, next question. um, how does self care look like to you? सेल्फ केयर यानी खुद की काळजी लेना वगैरह वगैरह, यानी खुद की केयर करना. सेल्फ केयर, हाउ डज सेल्फ केयर लुक लाइक टू यू? सेल्फ केयर, आई डोंट रियली गेट इट दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. आई जस्ट वांटेड टू कॉपी copy translate paste. खुद की देखभाल आपके लिए कैसी दिखती है? खुद की देखभाल आपके लिए कैसे दिखती है? खुद की देखभाल, आई डोंट रियली गेट इट. खुद की देखभाल लाइक द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड लाइक दैट कि आप खुद की देखभाल कैसे करोगे या वगैरह वगैरह. माइट बी, बट ये दिखती कैसी है, आई डोंट रियली सी इट. ओके, लाइक आई डोंट रियली गेट इट. खुद की देखभाल आपको कैसी दिखती है? लाइक इफ दिस क्वेश्चन रिलेट विद दैट, आप खुद की देखभाल कैसे रखोगे? सो या आई डू एक्सरसाइज, डू दिस थिंग, प्रॉपर डाइट. या आई डोंट रियली गेट इट दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, मे बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट अनॉय यू? ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको चिढ़ है वगैरह वगैरह. ओके, सो बेसिकली इज दैट ना कि दिस क्वेश्चन सेज दैट कि इफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्क गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड. ओके, लाइक बेसिकली अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, उसने मुझे प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली आपको कौन सी चीज़ से चिढ़ है. ओके, the answer of this question is actually different from person to person. Okay, अगर दैट पर्सन इज माई गर्लफ्रेंड तो आंसर कुछ थोड़ा सा डीप रहेगा. द पर्सन इज काइंड ऑफ लाइक अ लिटिल बिट बेस्ट फ्रेंड, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, फ्रेंड के साथ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. ओके, बट इज दिस थिंग व्हाट इज, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे चिढ़ है वगैरह वगैरह. चिढ़ तो नहीं है. ओके, बट there is a one thing that I experience in myself, that कि usually I get hurt so quickly. यानी मैं, अगर कोई मुझे ऐसा कह देता है ना कि तू चूतिया है, कमीना है, तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में वगैरह वगैरह, इन रिस्पॉन्स आई डिडंट रियली से एनीथिंग. ओके, आई डिडंट रियली से एनीथिंग. ओके, बट वो मुझे बुरा लगता है. ओके, अब बेसिकली द पर्सन हु सेज दैट थिंग, ओके, वो पर्सन कौन है? अगर वो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है वगैरह वगैरह. अगर फ्रेंड है तो भाई मैं कुछ भी नहीं, आई जस्ट लाइक या फन वे. बेस्ट फ्रेंड है वगैरह वगैरह, हाँ, उसका टोन भी कैसा है? ओके, इज दिस टोन इज काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली फन वे, तो हाँ, मैं भी साले तू चूतिया है, मैं बोलता साले तू लौड़ू है. ओके, सो बेसिकली फ्रॉम द फ्रेंड पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, हाँ, अगर ये गर्लफ्रेंड आपसे कह रही है कि यू आर रियली पथेटिक, यू आर नॉट समथिंग लाइक दैट वगैरह वगैरह, तो या इट माइट गेट हर्ट मी. ओके, हाँ, इन चीज़ों से मुझे दर्द होता है. ओके, एट दैट टाइम आई विल नॉट से एनी थिंग टू एनी वन. ओके, शायद लाइक बेसिकली इज दैट ना, माई पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव इज़ दैट कि उसने ऐसा कहा है या सोचा है या उसने ऐसा बोला होगा
फॉर काइंड ऑफ लाइक कुछ ना कुछ रीज़न हो गए, उस वजह से उसने मुझे ऐसी चीज़ बोली होगी। ओके, सो आई एम थिंकिंग अबाउट फ्रॉम दैट वे, बट उससे मुझे चिढ़ नहीं आती है, बट आई गेट हर्टफुल। ओके, और हर्टफुल होने के बाद लाइक might be I this kind of like a something little bit of बैड मूड हैपन, शायद उससे मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, और मूड ख़राब होने के बाद थिंग्स विल नॉट हैपन गुड। ओके, क्योंकि क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि जब मेरा मूड ख़राब हो जाता है तो आई wanted to escape that situation and surrounding। okay, क्योंकि it actually happened। okay, let me tell you one thing ना, क्या होता है कि it actually incident happened। वन मैन रिसेप्शन, वन मैन की रिसेप्शन था, एंड एवरी वन इज़ एक्चुअली वेयरिंग अ ब्लेज़र। ओके, एवरी वन लाइक बेसिकली इज़ दैट ना कि सभी लोग ब्लेज़र पहनने वाले थे, बट बेसिकली इज़ दैट ना कि एट दैट टाइम वी डोंट रियली डिसाइड दैट कि हम ब्लेज़र पहनने वाले भी है या नहीं इन द रिसेप्शन। ओके, सो सभी लोग ऐसे शर्ट और टी शर्ट में आ गए। ओके, बट आई ऑलवेज नो दैट कि यूजुअली फंक्शन जैसे होता है ना, तो फंक्शन में सभी लोग ब्लेज़र पहनते हैं, तो आई कैरी द ब्लेज़र। ओके, मैं ब्लेज़र कैरी किया, विशाल कैरी द ब्लेज़र टू। ओके, रेस्ट ऑफ द पीपल म्हणजे वैभव एंड बादल, सॉरी वैभव, प्रशिक, राहुल, विकी भाऊ, दे डिडंट रियली कैरी द ब्लेज़र। ओके, लाइक दे थॉट दैट, उन्हें ऐसे लगा कि ब्लेज़र वॉज, क्योंकि वो गर्मी का महीना था एंड ब्लेज़र वॉज काइंड ऑफ लाइक अ वे मच गरम, सो दे डिडंट रियली वेयर द ब्लेज़र। ओके, अभी मैं विशाल, बादल, वी बोथ आर वेयर ब्लेज़र। ओके, वी एक्चुअली वेयर द ब्लेज़र, वी डिडंट रियली टॉक, बट हाँ मुझे पता था कि मुझे ब्लेज़र पहनना है, विशाल ने भी ब्लेज़र पहना और बादल ने भी ब्लेज़र पहना है। ओके, सो basically is that when we reach the reception, we are actually wearing blazer and they says that कि भाई तू ब्लेज़र पहन रहा है, हम कुछ भी नहीं पहन रहे, मुझे हम कुछ भी नहीं पहन रहे, एंड तूने बताया क्यों नहीं वगैरह वगैरह। इफ़ यू से दैट आई विल डेफिनेटली वेयर द ब्लेज़र। ओके, फिर देन बेसिकली इज़ दैट कि यूजुअली ब्लेज़र मेरे पास ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मीन्स लाइक दैट कि आई हैव माइन, then there is my father blazer, then my brother blazer, and I have like a lot of blazer। okay, so usually I carry the blazer for them। then Vaibhav says something that ki like मी नाही घालत वगैरह ब्लेज़र वगैरह वगैरह, लाइक बेसिकली एवरीवन पिक अप नाइस ब्लेज़र, एंड वैभव के लिए कोई अच्छा ब्लेज़र ही नहीं था, तो ही सेज दैट कि मी नाही घालत ब्लेज़र, तू असा आहे तसा आहे, तू पहिले सांगता येत नाही का वगैरह वगैरह। ही सेज लॉट ऑफ थिंग टू मी एंड आई फील लिटिल बिट ऑफ हर्टफुल। ओके, उसमें मेरी गलती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ओके, आई वेयर ब्लेज़र बिकॉज आई वॉन्टेड टू वेयर ब्लेज़र। ओके, आई कैरी ब्लेज़र फॉर देम, क्योंकि उन लोगों के पास ब्लेज़र नहीं है, तो ठीक है मेरे पास कोई ब्लेज़र है तो मैं उनको दे दूंगा, सो दैट दे कैन वेयर द ब्लेज़र एंड सो दैट वी कैन टुक द फोटो विद दैम। ओके, बट उसके बाद भी अगर वैभव को अच्छा ब्लेज़र नहीं मिला, देन ही वॉज से दैट कि हाँ तू चूता है वगैरह, तूने मेरे को बताया नहीं। ही से समथिंग रियली लॉट ऑफ बैड स्टफ। अभी वहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया डूड। इट्स लाइक व्हाट द फक आर यू डूइंग डूड। ओके, लाइक मैंने जो चीज़ें लाई ना वो तुम्हारे लिए परफेक्ट लेके आई ना। ओके, लाइक बिफोर दिस ब्लेज़र यू डोंट रियली हैव अ ब्लेज़र, अभी जो तुम्हारे पास ब्लेज़र है अभी वो तुम्हें पसंद नहीं है, बट स्टिल यू हैव दैट ना, तो एटलीस्ट पहन तो ले। नहीं, ही सेज दैट कि मैं नहीं पहनने वाला, मुझे ब्लेज़र नहीं पहनना है। व्हाट द फक इज़ दैट। आई वाज लाइक ही सो मेनी थिंग्स दैट मुझे बहुत गुस्सा आई, जस्ट लाइक सुपर गुस्सा है। सो एट दैट टाइम व्हाट आई डिड इज़ दैट कि मैं थोड़ा सा बाहर चला गया, रिसेप्शन थोड़ा सा अलग हो गया, आई वेंट टू द ग्राउंड, थोड़ा सा खुद को शांत किया। एट द टाइम आई जस्ट वांटेड टू लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक एंग्री हो गया था, सो आई जस्ट टॉक सो बैड स्टफ इन द ग्राउंड। आई वॉज अलोन देयर, बट या देन आई जस्ट calm my down and I get into a get into that reception and just like be calm। okay, हाँ मैंने वैभव से बात की, बट आई जस्ट काम माई सेल्फ। ओके, वगैरह वगैरह, नहीं तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हो गया था। सो या, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक अ थिंग दैट माइट बी अनॉय समवन। ओके,
क्योंकि अगर मैं गुस्सा हो जाता हूँ ना, तो गुस्सा होने के बाद थिंग्स आर नॉट रियली गुड, ओके, चीज़ें काफ़ी अच्छी नहीं हो जाती। सो आई जस्ट वांटेड टू एस्केप दैट सिचुएशन, ओके, मैं उस चीज़ से निकलना चाहता हूँ पहले जल्द से जल्द, ताकि मैं ऐसे गाली दे दूँ, ओके। So yeah, this is what I do. Might be this kind of like a thing will annoy, but yeah, this is the thing. Okay, मुझे दूसरों के लोगों से शायद थोड़ा बहुत हर्ट होता है, तो so I just don't want it to get in the center. Okay, बट या डूड ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है डूड, ओके। यूजुअली अगर ऐसे लोग ना जो आई नो दोज पीपल और वो मुझे ऐसे कह रहे हैं, हाँ, देन आई माइट गेट हर्ट। बट ऐसे कुछ रैंडम स्ट्रेंजर है जो मुझे कुछ बोल रहा है वगैरह वगैरह, आई डोंट रियली केयर दैट वाला, जस्ट फक अप डूड, फक यू अप, आई डोंट रियली केयर दैट मच। सो या देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एनीथिंग डू आई मेक यू अपसेट? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे अपसेट हो सकते हो? सेम थिंग, ओके, योर वर्ड्स, ओके, जस्ट लाइक दैट ना। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली हम प्यार करने के साथ लाइक बेसिकली तिखट गोड़ बनता था ना, ओके, लाइक बेसिकली आप जिनसे प्यार करते हो उनसे सबसे ज़्यादा झगड़ा करते हो, ओके। लाइक आई डोंट नो यार डूड, जस्ट लाइक दैट ना। मैं ऐसे सोचता हूँ कि लाइक झगड़ा इज़ आई शुड वांटेड टू अवॉइड दैट थिंग, ओके। अगर झगड़ा फन वे में होता है दैट इज़ ओके, बट अगर झगड़ा अगर सीरियस में इसमें होता है तो दैट इज़ रियली नॉट ओके यार, आई रियली डोंट वांट दैट, ओके। और यूजुअली झगड़ा होता है ना फ्रॉम द बैड वर्ड्स, द वर्ड्स दैट वी आर सेइंग, क्योंकि जिस बंदी से आप प्यार करते हो ना, अगर वो आपको कुछ ऐसा वैसा बोल देते ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मुझे उन लोगों का गुस्सा भी आया है, अगर लाइक इफ़ आई एम बिटरली एंग्री टू माई गर्लफ्रेंड, तो मैं शांत हो जाता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट काम माई सेल्फ, ओके। कभी कभी मैं सिचुएशन से दूर हट जाता हूँ, ओके, सो दैट आई जस्ट लेट काम माई सेल्फ। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं अगर गुस्सा हो गया एंड एट दैट टाइम जस्ट लाइक बेसिकली ना, बातों बातों से बात बढ़ती है, दैट इज़ ऑल आई हर्ड अबाउट, ऑल आई थिंक एंड ऑल आई एक्सपीरियंस अबाउट, ओके। लाइक बेसिकली झगड़ा होने के बाद आप गुस्सा कर रहे हो, वो गुस्सा कर रहे हैं, तो चीज़ें माइट गेट रॉन्ग, ओके। सो बेसिकली हाँ, बट ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट ना, दिस क्वेश्चन सेज दैट कि व्हाट इज़ द थिंग दैट might get upset. So usually I didn't really have a particular person. So usually कभी कभी बिहेवियर से भी मुझे चीज़ें, बिहेवियर से भी शायद मुझे चिढ़ होने लगती है, बिहेवियर से माइट बी, ओके। आई डेंट रियली मेट एनी पर्सन दैट काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली दैट, बट गर्लफ्रेंड एक तरह से गर्लफ्रेंड और काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली गर्लफ्रेंड वाइफ वगैरह, एक काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली वेरी क्लोज, ओके। क्योंकि उनके बिहेवियर से आपको इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। आई डेंट रियली हैव दैट काइंड ऑफ लाइक अ पर्सन इन माई लाइफ, सो माइट बी आई डोंट नो येट, so might be I will not able to give those answer right now, but yeah, in this situation, in the future it might get happen, so yeah, I have to prepare that, but still I tell them ki ha, this is the thing I don't like about it वगैरह वगैरह। so yeah, next question, uh, what worries you? worries यानी होता है कि काळजी लगना, worries यानी like I am worry like little bit, ओके। वरी एक, लेट मी गूगल इट ना, शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं है, कॉपी पेस्ट, चिंता, ओके। ऐसी कौन सी बात है जिससे लाइक यू आर एक्चुअली लाइक चिंता, या चिंता मीन्स लाइक दैट कि लाइक थिंकिंग अबाउट टेंशन वगैरह वगैरह। सो व्हाट इज़ अ टेंशन दैट यू हैव? टेंशन, यस। सो यूजुअली ना कि right now I'm 30, okay, and I have a lot of experience regarding career वगैरह वगैरह, that's why I choose YouTube career, because of that कि I have complete control of my career and everything, okay। as also in the future I wanted to do start up my own thing, own company, so basically company own करना वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे भी I am kind of like a something in head position। also is that कि during the
ड्यूरिंग द ग्रोथ, ड्यूरिंग एवरीथिंग, तो वहाँ पे टेंशन हमेशा ही होती है, एवरीथिंग ओके रिगार्डिंग. बट यूजुअली दिस टेंशन इज एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन रेफर एज अ काइंड ऑफ लाइक अ रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप में कुछ टेंशन वगैरह है क्या, लाइक इज दिस काइंड ऑफ लाइक अ थिंग? वेल, I don't know. Yeah, same thing is that I didn't really have experience about anything. I didn't really know about anything. So might be I will not give the answer this thing right now. Okay. क्योंकि ऑब्वियसली टेंशन क्या होता है ना कि ड्यूरिंग द रिलेशनशिप देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अगर एक दूसरे में प्यार में हो और आप कॉलेज में हो, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. यू हैव अ करियर इन फ्रंट ऑफ यू. आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, आगे भी बढ़ना है. ओके, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे. ओके, सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स डूड. ओके, तो वहाँ पे टेंशन रहता है ना कि अगर करियर लगने के बाद फैमिली आर एक्चुअली पुशिंग यू टू गेटिंग मैरिड, तो वहाँ पे टेंशन हो जाता है कि मान ले कि अगर लड़की का करियर जल्दी ग्रो हो जाता है एंड द फैमिली ऑफ देयर गर्ल इज़ एक्चुअली वांटेड टू गेटिंग मैरिड विद समवन एल्स, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है ना. ओके, वहाँ पे क्योंकि लड़का अब तक जॉब पे लगा नहीं है, लड़का हैवंट रियली ग्रो देयर करियर, सो इट्स लिटरली डिफ़िकल्ट. तो वहाँ पे टेंशन हो सकता है. ओके, इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड ना, मैरिड होने के बाद भी करियर एंड किड्स, हैविंग किड्स, वहाँ पे भी टेंशन हो सकता है डूड. इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, एंड एज ऑल्सो इज दैट ना, लाइफ इज एक्चुअली मेंड बाय द प्रॉब्लम्स. ओके, लाइफ आप जीते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो होता ही है. ओके, इन एवरी सेक्टर, करियर, रिलेशन वगैरह वगैरह, हर चीज़ में प्रॉब्लम होता ही है. ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यू जस्ट हैव टू सॉर्ट आउट दिस थिंग बोथ द, लाइक यू हैव टू सॉर्ट आउट विद दिस थिंग एज अ टुगेदर. चीज़ें आप एक दूसरे के साथ फिगर इट आउट करोगे ना, ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है. द वॉट एवर द सिचुएशन यू आर इन इट, यू विल सॉल्व दोज थिंग्स. सो या, so it's been 32 minutes. Okay, yeah, that is good. Okay, the recording is really great. In this recording I didn't really been like, I never really been in judgmental. I talk about the things that I experience, as also I tell the point of perspective वगैरह वगैरह. Judgment नहीं हुआ मैं, so that is cool. Yesterday I was bitterly judgmental, so yeah. Also yesterday I was not really focused while recording artifact episode, so yes. Alright, this is it. This is then. This is it. This is the My Artifact episode number 2884. Right now we are at Madhya Maharashtra. Thank you.